Hey everyone, I am Gurudat, Assistant Professor in Indraprasth Law College. This is the sixth video lecture of Law of Property and Easement. A quick recap of last 5 videos. In the first 2-3 videos, we had seen general principles of law of property along with the differences between immovable and movable property. Then in the fourth video, we had studied sale of property given under section 54. In the fifth video, we had studied exchange given under section 118 of TPA 1882. Now in this video, we will study mortgage. Mortgage has been dealt under section 58 of Transfer of Property Act. Now let's move ahead with mortgage. See, first thing which we should know that what is mortgage? The first question which should arise: what is mortgage? Now, before going to the definition given under section 58, in common words, mortgage is something in Hindi what we call गिरवी रखना. For example, जब हमने किसी से लोन लेते हैं, we have taken a loan from a bank, then we give some documents, some property papers or some security to the bank that in case we are unable to pay the loan, you can take this property and recover your damages. So that is mortgage. In Hindi, गिरवी रखना जो कहते हैं उधार लेने पे, that is mortgage. Now, according to section 58A, mortgage has been defined as a mortgage is a transfer of an interest in specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advanced to be advanced by the way of loan, an existing or future debt, or the performance of a engagement which may give rise to a pecuniary liability. So we'll study further. What is mortgage? The mortgage is basically securing payment of loan by transferring interest in immovable property, which is specific immovable property. तो वही है, बिकॉज वी हैव टेकन सम लोन और फ्यूचर लोन, तो उसको हम सिक्योर करने के लिए कोई प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं. दैट इज मॉर्गेज. नाउ कौन कौन इन्वॉल्व होता है मॉर्गेज में? व्हाट आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन मॉर्गेज? फर्स्ट पर्सन इज ट्रांसफरर. द पर्सन हु ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांसफरर और mortgager. Now the person whom the property is transferred, that is transferee, is called mortgagee. The principal, money and interest of which payment is secured for the time being are called mortgage money. That is the principal, money or interest for which it is secured. The instrument, the paperwork through which the transfer is effected is called mortgage deed. These four terms are given in section 58, and these four terms will be used again and again in this chapter. So you should understand the transferor is called mortgager. The person whom the property is transferred, for example bank, it can be a bank, it is called transferee, it is called mortgagee. The principal amount and interest which is of which payment is secured for the time being is called mortgage money, and the instrument is called mortgage deed. Then let's come to the essentials of mortgage. There must be transfer of interest. In mortgage, though the title is not being directly transferred, but interest has been transferred. There is no transfer of ownership or the title, but transfer of interest only for the purpose of securing payment of money by the way of loan is to be done. The right of mortgagee is only an accessory right, which is intended merely to secure the due payment of the debt. इट इज़ जस्ट एसेसरी राइट. बस सिक्योरिटी होती है कि ठीक है, इन केस ये मेरा लोन नहीं चुका पाएगा, देन आई विल टेक द ओनरशिप ऑफ दिस प्रॉपर्टी, देन आई विल टेक द प्रॉपर्टी. मॉर्गेज इज सिंपली अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी वाइल ओनरशिप इज स्टिल रिमेन विद द मॉर्गेजर. तो जो ओनरशिप है अभी भी वही आदमी है जो लोन लिया है, पर एक मॉर्गेज क्रिएट हो गया है कि इन केस वो लोन नहीं चुका पाएगा, इन दैट केस प्रॉपर्टी जो है वो चली जाएगी मॉर्गेजी के पास. देयर मस्ट बी सेकेंड पॉइंट है, देयर मस्ट बी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू बी मॉर्गेज. प्रॉपर्टी जो है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए इन केस ऑफ मॉर्गेज.
रैंडम प्रॉपर्टी नहीं कि ठीक है मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगा, दैट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, ये नहीं कह सकते आप कौन सी प्रॉपर्टी देंगे, प्रॉपर्टी कहाँ है, क्या है, दैट शुड बी स्पेसिफाइड। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी एकदम क्लियर होनी चाहिए, अमाउंट क्या है प्रॉपर्टी की, वट एवर इट इज, ऑल दीज थिंग्स शुड बी क्लियर इन मॉर्गेज। देन थर्ड, transfer must be made to secure the payment of a loan or to secure the performance of a contract. Consideration of mortgage may either be money advanced or to be advanced by way of loan, and existing or future debt, performance of engagement giving rise to pecuniary liability. In these three cases आप मॉर्गेज कर सकते हैं। कोई लोन लिया हो तब कर सकते हैं, पुराना या पहले का लोन हो तो कर सकते हैं, फिर आप कोई काम करें। जैसे कभी कभी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं लाइक 500 करोड़ के। अब अभी एक कंपनी जा रही है कि मुझे ये 500 करोड़ का काम करना है, तो गवर्नमेंट कुछ उससे मॉर्गेज करवाती है, कुछ एक सिक्योरिटी लेती है कि इन केस तुम ये काम नहीं कर पाए तो तुमसे हम ये ले लेंगे, हम तुमसे इतना पैसा वापस ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे पिक्यूनरी लाइबिलिटी बनती है उस कंपनी की अगर वो काम नहीं कर पाती है, तो उस केस में भी मॉर्गेज हो सकता है। नाउ अब इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस। तो बेसिकली 6 टाइप्स के मॉर्गेज जो हैं वो दिए हुए हैं सेक्शन 58 में। दैट इज सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट्स ऑफ टाइटल डीड्स और एनोमोलस मॉर्गेज। अब हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज सिंपल मॉर्गेज? सिंपल मॉर्गेज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉर्गेज। वहाँ पे आप सिंपली डिलीवरी नहीं देते हैं प्रॉपर्टी का, बट उसको अंडरटेकिंग दे देते हैं कि अगर मैंने अमाउंट नहीं पे किया तो आप मेरी प्रॉपर्टी ले लीजिएगा। इन सिंपल मॉर्गेज the mortgagor does not deliver the possession of the mortgaged property, but he gives a person undertaking to the mortgage that he will repay the amount due under the mortgage. तो अगर हम पेमेंट नहीं कर पाए तो आप प्रॉपर्टी ले लीजिएगा। दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ मॉर्गेज। अब मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। In this type, mortgage first sell the property in favor of the mortgagee with a condition to revert back it to him if mortgager repays his loan with interest, and if he fails to do it, then mortgagee will become absolute owner. इसमें इस केस में क्या होता है, मेरा एक घर था, मैंने जो है वो किसी को बेच दिया, और बेच तो दिया मैंने, लेकिन इस कंडीशन के साथ बेचा है कि अगर 10 साल में मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ ये पैसे वापस कर पाया तो वो घर तुम मुझे दोगे, और नहीं कर पाया तो तुम वो आगे किसी और को बेच सकते हो। तो 10 साल तक जिसको मैंने बेचा है वो उस घर को बेच नहीं सकता है, वो घर उसका है, टाइटल तो उसके पास है, सब कुछ उसका है, पर ये कंडीशन है, ये कंडीशनल सेल है कि अगर मेरे पास 10 साल में पैसा आ गया तो मैं घर वापस ले लूँगा। उसके बाद आता है usufructory mortgage. The word usufructory means right to use and take advantage of others' property. In case of usufructory mortgage, the mortgagor delivers possession of the mortgaged property, and the mortgagee is entitled to receive rents and profits occurring from the property and to settle the same in lieu of interest and principal sum. Mortgagor authorizes him to retain such possession until payment of mortgaged money. अब usufructory mortgage क्या होता है? इस मॉर्गेज में हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा एक कटरा है, एक शॉपिंग मॉल है, मैंने किसी से लोन लिया तो मैंने अपने शॉपिंग मॉल उसको ट्रांसफ़र कर दिया, मैंने टाइटल ट्रांसफ़र नहीं किया, मैंने पोजेशन ट्रांसफ़र किया है, और मैंने उससे कहा है कि इस मॉल से जो इंटरेस्ट आए, इस मॉल से जो रेंट आएगा, जो प्रॉफिट होगा, वो आप रखिए इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। जब तक आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट नहीं पूरा हो जाता उस प्रॉपर्टी से, आप उससे लेते रहिए, एक बार वो पूरा हो गया तो वो प्रॉपर्टी का पोजीशन दोबारा मुझे मिल जाएगा। इट इज़ कॉल्ड usufructory mortgage। फिर आता है इंग्लिश मॉर्गेज। हेयर द मॉर्गेगर ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मॉर्गेगी एंड प्रोमिसेस टू पे द मॉर्गेज अमाउंट ऑन अ सर्टेन डेट, एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच अमाउंट द मॉर्गेज प्रॉपर्टी शुड बी रीट्रांसफर्ड टू द मॉर्गेगर एज एग्रीड। यहाँ पे हम दी प्रॉपर्टी सिंपल ही एकदम, हम अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दिए और कहा कि मैं महीने की 12 तारीख को आपको सारा पैसा लौटा दूंगा, और अगर मैं नहीं लौटा पाया तो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। सिंपल इंग्लिश मॉर्गेज, एकदम इजी डेफिनेशन है इसकी। फिर आता है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। इसमें क्या होता है कि मैं एग्जैक्टली जो जनरल फॉर्म हम देखते हैं, हम एग्जैक्टली प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफ़र करते हैं, हम प्रॉपर्टी के पेपर्स किसी को दे देते हैं
कि भैया ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरे पास, ये आप प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लीजिए मेरे और मुझे 50-60 लाख रुपए जो भी है लोन दे दीजिए। तो वो आदमी इन द ल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पेपर्स, टाइटल पेपर्स ऑफ द प्रॉपर्टी आपको लोन दे देता है। तो यहाँ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, तो बेसिकली टाइटल डीड्स है, प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, वो जो है वो हम किसी को दे रहे हैं और उससे लोन ले रहे हैं। फिर 6th है एनोमलस मॉर्गेज। अगर कोई इस तरह का सिस्टम हुआ है किसी दो पार्टीज़ के बीच में, कोई कंडीशंस या कोई एग्रीमेंट हुआ है किसी दो पार्टीज़ के बीच में जो इन 5 टाइप्स के मॉर्गेज के अंदर नहीं आता है, इन दैट केस दैट इज़ कॉल्ड एनोमलस मॉर्गेज। उस केस में उसको एनोमलस मॉर्गेज बोलते हैं, जहाँ पे कोई नया टाइप का कंडीशन क्रिएट किया जा सकता है दो पार्टीज़ के बीच में मिलके, तो उसको एनोमलस मॉर्गेज बोलते हैं। तो इसी के साथ टाइप्स ऑफ मॉर्गेज हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर मॉर्गेज कंप्लीट करेंगे। आप सेक्शंस, डू रिमेंबर द सेक्शंस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सेक्शन 58, 58B, 58A में क्या है? 58A में ये है, 58A में द टर्म्स विच रिलेट टू मॉर्गेज हैज़ बीन डिफाइंड प्रॉपरली। What is transferor, what is mortgager, what is mortgagee, mortgage money, mortgage deed. फिर 58B में सिंपल मॉर्गेज क्या होता है ये डिफाइंड है। 58C में मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, 58D में मॉर्गेज उसफैक्टरी मॉर्गेज, और फिर इंग्लिश मॉर्गेज ई में। आफ्टर दैट in 58F we have mortgage by deposit of title deeds. Then after 58F we have 58G in which anomalous mortgage has been defined. So by now I hope that mortgage is very clear to you. So we have completed sale of title of property, mortgage and exchange. In the next video we will study section 100, that is charge. Charge is again very important section, and how charge is different from mortgage will also be discussed in that next video lecture. Thank you. Take care.